Hello everyone and welcome back to my channel. So we are going to discuss CBSE sample paper for class 12th retail, right? हम बोर्ड का पेपर CBSE बोर्ड 2025 एंड CBSE सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम वो दोनों क्वेश्चन पेपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस इज द सैम्पल पेपर. लेट्स स्टार्ट विद द पेपर. सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है. क्वेश्चन वन अगेन एज यू ऑल नो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है जिसमें 6 में से 4 करने हैं आपको एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. सो पार्ट वन इज की कम्युनिकेशन स्किल्स डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. यू कैन टेक पॉज द वीडियो, ऑप्शंस पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है हमें. द आंसर इज की कम्युनिकेशन स्किल्स में जो चीज़ नहीं इंक्लूड होती है वो है रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. इट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. लेकिन पेपर में जब भी आप आंसर लिखोगे आप ऐसे लिखोगे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन वन पार्ट वन ऑप्शन नंबर बी एंड with the full word. This way you will write the answer. Part 2. In which of the following cluster the paranoid personality disorder belongs? The right answer is A option. Right? Okay. Third, Ravi has feelings of emptiness and abandonment. What type of personality disorder is this? It is borderline. Fourth, which of the following is not a part of spreadsheet? Column number. Fifth part, one of the best ways to deal with self-doubt. It is to work towards one's goal. तो अगर आपको कभी भी सेल्फ डाउट होता है तो उसको आप कैसे डील कर सकते हैं. सेल्फ डाउट कैसे कम हो जाएगा अगर आप अपने गोल्स की तरफ एफर्ट्स पुट करेंगे, मेहनत करेंगे. सो यू कैन डील विद इट. सिक्स्थ इज CNG stands for compressed natural gas. The option is C. Now coming to question number 2 जिसमें 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. पार्ट 1 इज इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड सबॉर्डिनेट. तो सुपरवाइजर आंसर है क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो मैनेजमेंट और सबॉर्डिनेट के बीच में लिंकिंग पेन है. राइट. पार्ट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर नोन एज कैश रजिस्टर. इट इज पॉइंट ऑफ सेल. थर्ड, द मैनेजमेंट ऑफ सेल्स प्रोग्राम does not include maximize redistribution cost. Which of the following part 4 is the key element of successful direct delivery business? तो इसमें आपका जो आंसर है ये चारों ऑप्शन में से C is the correct option. Consistent high quality products. फिफ्थ पे आते हैं. Point of sale is the first and last place the customer will remember while in a store. तो पॉइंट ऑफ सेल कौन सी क्या होता है? ये वो प्लेस है जहाँ पे कस्टमर जो है he gets the impression of the entire store, the way he is dealt with, and it is a place where he makes the payment for the product he has purchased. Sixth part, what is the focal point in visual merchandising? So the point where product and props and background come together. It is the focal point. If you want to write down the answer, you can write down the point where product and props, where products and props, तो इसमें साइन बोर्ड वगैरह भी जो होता है वो भी and background come together. Right? Okay. Now seventh is it is one of the most effective tricks in merchandising. So keeping display neat and well stocked. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है. अगर आप डिस्प्ले नीट एंड क्लीन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3, इसमें 7 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 6. एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. ऑनलाइन रिटेलिंग इट इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स. पार्ट 2, which e-commerce model involve sale of goods and services from businesses to general public?
It is business to consumer. Third, ERP stands for Enterprise Resource Planning. Fourth, what is the full form of ICT? It is Information and Communication Technology. आप लिख सकते हैं, ये वाला हर बार ही आता है, दो इट इज़ वेरी इजी, बट मोस्टली आप 10 years पेपर्स जब करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. A strong password should be a combination of, it is option D, alphanumeric characters and special characters. Then merchants running PO system usually attach a, yearly options में cash draw to the system to hold the credit card receipts. तो cash draw answer. Seventh, this component can be programmed from the back office server to produce customized receipts or invoices for customer use. The answer is printer. इसका बेटा right answer है. Okay. क्वेश्चन 4 पे आते हैं. इसमें 6 में से 5 करने हैं आपको. एंड हेयर ऑल्सो हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. देन विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बेनिफिट क्या नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कि ये हिस्टोरिकल है. इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर. देन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग all business transaction in order to know the financial result is called accounting, right? Then fourth part, which of the following is an example of golden rule of accounting for real accounts? It is debit what comes in, credit what goes out. So the answer is A, debit what comes in, credit what goes out. ये golden rule है, ठीक है, अकाउंटिंग का फॉर रियल अकाउंट्स. फॉर रियल अकाउंट्स. ओके. तो अकाउंटिंग रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशन शुड रिमेन सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर एज पर, इट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. द राइट आंसर इज ए, कि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी अकाउंट्स में प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है वो सेम रहे फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. सो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट. Sixth part, with which of the following concept the fixed assets are recorded in the books of account at their original cost? So going concern concept. Now fifth में 6 में से आपको 5 questions करने and again here 1 mark का है. Okay. So it means list of goods and materials in stock by a business. It is inventory. Inventory. Second, inventories are made in buffer to meet uncertainties in demand. Third, which of the following method is used for items sold with an expiration date? So it is point of sale method. So next part, fourth, what is meant by stock out? Stock out का मतलब है कि जो आपकी inventory है वो almost खत्म हो रही है. So running out of an inventory. It is running out of an inventory. Then fifth part, a dash is the physical location of the store. So it is fixture map. Fixture map आंसर है इसका, fixture map. Then when counting inventory, team should focus on accurate count. 6 क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ 6 में से 5 करने और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट में है it retrieve coded pricing information using a laser beam. तो बारकोड स्कैनर से आपको प्राइस की इंफॉर्मेशन पता लग सकती है. Then the principal book ledger contains all accounts, right? Which one of the following is the call center technology? It is virtual call center technology. Okay, next point. A POS terminal manages the process by a salesperson accessible interface. Selling process, right?
फिफ्थ, द की रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बाय मॉडर्न पीओएस सिस्टम इंक्लूड। कौन सी रिक्वायरमेंट है जो मॉडर्न पीओएस सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि फॉलो करनी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? इट इज़ रिलायबिलिटी। देन बारकोड स्कैनर यूजेज अ लेजर बीम। अभी ऊपर इसका आंसर हिडन देखिए, यहीं पे आपको मिल जाएगा बारकोड। इट यूजेज अ लेजर, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह भी कई बारी आपको आंसर मिल सकता है इफ यू आर लकी। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये 7 to 11 जो आप देख रहे हो अगेन एम्प्लॉयबिलिटी में से है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं। डिफाइन एक्टिव लिसनिंग। सो एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है जिसमें which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. So in Hindi, if I have to explain, तो एक्टिव लिसनिंग एक आर्ट है जिसमें, ठीक है, इच्छा होती है कि आप दूसरों की बात को समझें और सपोर्ट भी देते हैं स्पीकर को। सो आई एम डिक्टेटिंग इन इंग्लिश, यहाँ स्पेस नहीं है। इफ यू वांट टू राइट तो you can write the answer. It is an art which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. Question 8 पे आते हैं। Mention 2 steps to overcome personality disorder. तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। You can talk to someone, right? So engage in hobbies such as music, dance, painting, वो भी that is also good way, right? And positive रह के by choosing word which gives you positive feeling, right? So another thing is you can build confidence in your ability to handle difficult situation, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। Then define row and column. Row क्या होता है? Arrangement of cells in horizontal manner. Arrangement of cells, और लेकिन arrangement of cells in vertical manner is column. Question 10. Mention any 2 benefits of green job. So green job का क्या है? It reduces greenhouse gas emissions. तो reduces greenhouse gases. और क्या हो सकता है इसमें कि also it control waste and pollution, etc. Then who are called IT entrepreneur? IT entrepreneur कौन होते हैं? जो people who take up entrepreneurship in the field of information technology. तो जो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं लेकिन किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उनको हम बोलते हैं आईटी एंटरप्रेन्योर, राइट? नाउ नेक्स्ट 12 से 16 अगेन 5 क्वेश्चंस हैं और हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2 नंबर का है। व्हाट इज न्यू ओल्ड स्टॉक? न्यू ओल्ड स्टॉक को हम एब्रीविएट करके शॉर्ट फॉर्म में एनओएस भी लिखते हैं। ये वो टर्म है which is used in business to refer to those goods which are being offered for sale uh, that was manufactured long ago but that has never been used. ठीक है, तो हम उस स्टॉक को न्यू ओल्ड स्टॉक बोलते हैं जो बहुत पहले, बहुत समय से बना हुआ है, मैन्युफैक्चर किया है बहुत टाइम से पहले, लेकिन उसको कभी यूज नहीं किया गया। हम उसको सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर बहुत पहले हुआ था लेकिन उसको कभी हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम उसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द यूज ऑफ स्वाइप कार्ड रीडर इंटरफेस। सो देखिए, स्वाइप कार्ड का क्या फायदा होता है और इसका क्या फायदा होता है? आप जब भी कभी पेमेंट करते हैं डायरेक्टली आप कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं, राइट? सो कार्ड पेमेंट जो है डायरेक्टली हो जाती है विदाउट एनी मैनुअल एंट्री और इट ऑल्सो इंश्योर्स एक्यूरेसी, राइट? सो जॉब, इससे जॉब, जो कैशियर की जॉब है, इट बिकम्स वेरी इजी। क्वेश्चन 14, हाईलाइट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेज retailers can become a more meaningful part of their customer life. तो retailers can become important part of customers life कैसे?
by deliver the brand promise. हमने ये डिटेल वीडियो में किया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। इसमें क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट है डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट, embrace क्रॉस चैनल रिटेलिंग। थर्ड, renew focus on the in-store shopping experience. So अगर if you want to write तो आप लिख सकते हैं deliver on the brand promise। सेकंड आप लिख सकते हैं इसमें embrace क्रॉस चैनल रिटेलिंग। embrace क्रॉस channel retailing and renew focus on the in shopping in store shopping experience। इसको आप लिख सकते हो just as in store shopping experience। Name two broad categories of POS system। So broad category ये है कि hardware and software combination, and second one is just a second, yeah, first आप लिख सकते हो hardware and software combination। Number two is target business segment of POS system। 16th, what is the importance of point of sale marketing? पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करता है, और पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग में जो कस्टमर है दे कैन ट्राई दी प्रोडक्ट, और ट्राई करके अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है दे कैन अल्टीमेटली परचेज इट ऑल्सो। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द शॉपर्स क्या करते हैं, वो कौन सी आइटम्स खरीदते हैं जो उनको शेल्फ में मिलती है, जो डिस्काउंट्स में मिलती है, सैम्पल्स के थ्रू दे ट्राई द प्रोडक्ट नियर पॉइंट ऑफ परचेज। क्या होता है, पॉइंट ऑफ परचेज के पास जहाँ वो पेमेंट करते हैं उस काउंटर पे कुछ चीज़ें सैंपल के लिए भी रखी होती है, वो उसको ट्राई करते हैं, उनको अच्छी लगती है तो वो उसको खरीद लेते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस होता है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग का, कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रायल के लिए रखे होते हैं, और इससे प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी क्रिएट होती है। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, आई वेंट टू हल्दीराम, तो दैट टाइम दे लॉन्च फर्स्ट टाइम दे लॉन्च द मसाला पैकेट्स एंड ऑल, एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू मेक द पेमेंट, जो भी मैंने सामान खरीदा था, तो मैंने वहाँ पे एकदम देखा कि ये नया चीज़, नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। देन आई बॉट इमिडिएटली, चलो मैं भी ट्राई करके देखूंगी। सो ये फायदा होता है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग का, कि आप जब भी पेमेंट करने जाते हैं पॉइंट ऑफ परचेज पे, तो वहाँ कोई नया अगर लगा होता है, सैंपल रखा होता है, तो कस्टमर दे आर टेम्पटेड टू बाय दैट। Now question 17 to 19, 3 में से you have to do only 2 and each question carries 3 mark. Question number 17 is what is the role of ICT? ICT का बहुत important role है, जो companies हैं they quickly it can help the companies adapt quickly to the new standards of sustainability। और retail activities में तो rapid growth होती है information communication technology से, और इंटरनेट ने भी अब बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। ठीक है, आप यू कैन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सप्लोर फॉरेन मार्केट्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 18, राइट द एडवांटेजेस इफ ई रिटेलिंग फॉर एडवांटेजेस ऑफ होना चाहिए बेटा, एडवांटेजेस ऑफ ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स। तो ई रिटेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। देखो, अगर आपकी ट्रेडिशनल आप शॉप के थ्रू रिटेल स्टोर्स है जैसे घर के पास, तो वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं लोकल होंगे ज़्यादातर। लेकिन ई रिटेलिंग में लोकेशन ज़रूरी नहीं है, साइज भी ज़रूरी नहीं होता, एंड वेजेस भी सेव होते हैं, राइट, कॉस्ट कम होती है, आप यू कैन टारगेट द लार्जर ऑडियंस, और 24/7 वन कैन एक्सेप्ट द ऑर्डर, राइट। सो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है। देन क्वेश्चन 19, व्हाट इज अ बार कोड स्कैनर एंड व्हाट आर इट्स की फंक्शन? बार कोड स्कैनर को हम लोग जो बैक ऑफिस सर्वर है वो ब्रेन होता है, बैक ऑफिस सर्वर जो है ये मेन कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड बारकोड स्कैनर का क्या काम है?
बारकोड स्कैनर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट हेल्प्स इन प्राइसिंग। देखो इसका आंसर भी, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, कई बारी आपको आंसर ऊपर एमसीक्यू से भी मिल सकते हैं। इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था आई थिंक सो, बारकोड का ना। लेट मी फाइंड इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तो नहीं है। लेट मी अगेन चेक। आप वीडियो को देखेंगे बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा ऊपर ही एमसीक्यू, ये रहा, दिस वन, ये वाला। तो बारकोड स्कैनर, अगर आपको आंसर नहीं याद है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। इट रिट्रीव कोडेड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ लेजर बीम। ये वाला जहाँ स्टार बना रही हूँ ना, ये वाला आंसर। तो आपको कई बार आंसर ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को थरली पढ़ोगे ना, आपको एक दो आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे एमसीक्यू से, राइट? ओके, देन question number 20. Raman is working in a retail outlet as a visual merchandiser for a high-end fashion brand. तो स्टोर मैनेजर ने नोटिस किया कि सेल्स तो कम हो रही है, तो व्हाट स्टेप रमन मस्ट टेक टू एनालाइज द सिचुएशन एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन टू इंक्रीज सेल्स बाय इफेक्टिव यूज ऑफ एंड डिस्प्ले। अब मैनेजर ने देखा कि स्टोर में सेल्स कम हो रही है, तो रमन को क्या करना चाहिए कि सेल्स बढ़े, एंड उसको इफेक्टिव बाय इफेक्टिव यूज ऑफ एंड डिस्प्ले, right? Also give some basic tips regarding the same. तो display at the end of each gondola run called feature ends और end caps are highly effective. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप पूरे स्टोर के एंड में आप जिस तरह डिस्प्ले करते हैं गुड्स को, दैट इज कॉल्ड एज एंड कैप्स एंड या एंड डिस्प्ले। तो इसमें आप इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, वहाँ पे कोई ऑफर डिस्काउंट जो है वो भी आप कस्टमर्स को बता सकते हो, राइट? लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है कि डिस्प्ले किस तरह किया गया है, और कौन से सीजनल नेचर के जो गुड्स है आप वहाँ उधर लगा सकते हो, राइट? लोकेशन इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने बहुत डिटेल में पहले कराया हुआ है, तो आप वहां से आंसर्स को वीडियो डिटेल वीडियो से देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉइंट ऑफ सेल? सबसे पहला है स्कैनिंग द प्रोडक्ट, फिर इसमें है रिसीविंग पेमेंट्स, राइट, एंड प्रिंटिंग द बिल। तो ये डिटेल, ये भी डिटेल वीडियो में अपलोडेड है। प्रिंटेड द बिल एंड कैश ड्रॉर merchants running POS system usually attach a cash drawer, क्या तो कैश ड्रॉर वाला भी आप कर सकते हो। तो ये मैं डिटेल में नहीं अभी करा रही हूँ, क्योंकि हम लोग डिटेल वीडियो में इसका आंसर होगा, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 22, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस के, ठीक है, इसको हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल पोजीशन पता कराना कि फर्म whether it is earning profit or it is suffering losses, right? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन क्वेश्चन 23, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ डबल एंट्री, ऑल्सो मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। तो रूल्स डबल एंट्री के पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, राइट? स्टेप्स भी हम डिटेल में कर चुके हैं, तो स्टेप्स आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल वीडियो से। कि फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फाइंड आउट विच आर द टू अकाउंट्स अफेक्टेड। सबसे पहले देखना है कौन से दो अकाउंट्स पे इफेक्ट हो रहा है। फिर हमें देखना है कि ये अकाउंट किसको बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल, नॉमिनल या रियल को, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द रूल, सिंपल।
Last question. Suraj is working in a snacks cafe where he is managing inventory. He labels the food with the dates you stored them and put the older food in front or on the top so that you see them first. What method of inventory is applied? तो let me read the question again. सूरज एक स्नैक्स कैफे में काम करता है जहाँ पे वो इन्वेंट्री को मैनेज करता है. तो वो फूड लेबल करता है फूड को, ठीक है, और विद द डेट्स यू स्टोर देम एंड पुट द ओल्डर फूड इन फ्रंट. ओल्डर जो है फूड उसको पहले लगाता है या फिर टॉप पे रखता है, ठीक है, उसको, सो दैट हम उसको वो पहले यूज कर लें. राइट. कौन सा मेथड है ये इन्वेंट्री का? फीफो बोलते हैं हम इसको. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले खरीदा है उसको पहले ही निकालना है, यूज करना है. सो इसको बोलते हैं फीफो मेथड. राइट. तो ग्रोसरी स्टोर्स या जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड सामान रखा जाता है, ठीक है, वो इस मेथड को मोस्टली फॉलो करते हैं ताकि इन्वेंट्री वेस्ट ना हो और फूड जो है वो पहले ही खरीदा जाए बिफोर इट गोज बैड. So this is all in this video, and please hit the like button, share the channel with your friend, and also subscribe to it. Right. बाकी इसके धीरे धीरे जो जो पेपर्स और मेरे को भी सैम्पल पेपर्स भी हम इसके और भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज इन पेपर्स को बोर्ड के एग्जाम से पहले जरूर करके जाइए. द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द मोर यू आर गोइंग टू बेनिफिट. वन मोर थिंग, एक चीज और है, ये सीबीएसई स्किल एजुकेशन है, तो एजुकेशन पेपर है ये वाला. आपको जितने पेपर्स आप गो थ्रू करोगे तो आपको पता लगेगा काफी क्वेश्चंस जो हैं वो रेपिटेटिव है, रिपीट हो रहे हैं. तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस करें before you appear for the final exam. Thank you for watching the video.